Hello everyone, welcome to the More Computer Academy. Today we are starting a new previous year question paper of computer science. Let's begin. Our first question is, this numerical is based on artificial neuron in neural network, and what is given here? This is neuron. What is neuron? Neuron is a single processing unit जो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, एंड दिस इज़ वेट वेक्टर. एंड वेट, व्हाट इज़ वेट? वेट क्या शो करता है? जो भी हम इनपुट मशीन को प्रोवाइड करते हैं उसका कितना स्ट्रॉन्गली इम्पैक्ट हमारे आउटपुट पे रहेगा, ये शो करेगा वेट. एंड व्हाट इज़ बायस? बायस हमारे न्यूरॉन को एक फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि वो एक्टिवेशन लेवल पे इजीली शिफ्ट कर पाए और एडजस्ट कर पाए एक बेटर प्रिडिक्शन के लिए. एंड व्हाट इज़ एक्टिवेशन फंक्शन? एक्टिवेशन फंक्शन एक मैथमेटिकल रूल है जो डिसाइड करता है कि हमारा जो न्यूरॉन है it should be activated or not. And this is input vector, and what we find here, it's output of neuron. हम कैसे फाइंड करेंगे आउटपुट ऑफ न्यूरॉन को? इसके लिए हमें टू स्टेप्स को फॉलो करना है. नंबर वन इज कैलकुलेट द नेट इनपुट, एंड सेकंड वन इज कैलकुलेट द एक्टिवेशन फंक्शन. Okay, let's move to the formula of net input. This is the formula of net input. Input vector multiply weight vector plus bias. Okay, and these values are given in our question, and net is equal to x multiply weight plus b. Okay, and x represent a input vector and w represent a weight vector, and plus b is bias. Okay, now put the values in the formula. First of all, we take one value from input vector and multiply it by the value of weight vector, then add, and again take one value from input vector and multiply it by the value of weight vector, then again add, and we do until the end of input vector number and the weight vector number. Okay, what we get? 4 multiply 1 plus 8 multiply by 2 plus 5 multiply by 3 plus 6 multiply by 4, then plus add. What we get? 4 plus 16 plus 15 plus 24 plus 0. We get net is equal to 59. Okay, what is the net value here? 59. Now the second one is activation function. This formula is given in our question, and we get net value is 59. When we do the multiply it by 2, we get 118. This is our answer. Okay, option D is correct here. Move to the next question. Uh, this numerical is based on linear inequalities. Okay, here two quadrant are given, this one and this one. In second quadrant 4 is common, so we divide this quadrant by 4. What we get? X, 4x minus 4y, and greater than equal to 4 divisible by 4. 4 से 4 ये cancel हो जाएगा. What we get here? X minus y is greater than equal to 1. Okay, now take the value of x is 2 and take the value of y is 0.5 is greater than equal to 1. Okay, and put the values in first quadrant. 3x minus y is greater than equal to 3. Then here x is value 2 and y is value 0.5. What we get? 5.5, which is greater than 3. This quadrant is true. And now move to the second one, is x minus y greater than equal to 1, and put again the x is equal to 2
and y is equal to 0.5 is greater than 1. What we get here? 1.5 is greater than 1. So the quadrant second is also true. Now what we get? Option number A is correct here. Our positive value solution for the positive x and y. Move to the next question. What is our next question? Which of the following manages the switching function in GSM? What is GSM? GSM is a global system for mobile communication. Okay. What is switching function? What is switching function? Switching function एक ऐसी प्रोसेस है जो जो पाथ प्रोवाइड करती है किसको? यूज़र को, और जो हमारा जो डिवाइस है उसमें और नेटवर्क में, दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन कौन प्रोवाइड करता है? स्विचिंग फंक्शन. ओके, व्हाट इज आवर ऑप्शन? सी इज करेक्ट हियर. NSS. व्हाट इज NSS? NSS फुल फॉर्म इज नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम. ये क्या है? ये क्या मैनेज करता है? ये स्विचिंग फंक्शन को मैनेज करता है. ओके, एंड इसके मेन कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो NSS के अंदर क्या क्या मेन कंपोनेंट हो सकते हैं? नंबर 1 इज MSC. MSC इज व्हाट? MSC इज मोबाइल स्विचिंग सेंटर. ओके, मोबाइल स्विचिंग सेंटर में क्या है ये बेसिकली जो भी हमारा स्विचिंग सिस्टम है, एक डिवाइस और नेटवर्क के बीच में जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश करता है. कौन? MSC. एंड व्हाट इज HLR? व्हाट इट इज? होम लोकेशन रजिस्टर. होम लोकेशन रजिस्टर इज सपोज एक पर्सन के पास जो सिम कार्ड है उसके जो कंप्लीट जो डिटेल है, यूज़र आईडी एंड यूज़र फ़ोन नंबर, यूज़र होम एड्रेस, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी कहाँ स्टोर होती है? HLR. कहाँ पे? HLR. इस जो हमारा ये जो डाटा है इसको कौन करता है? मैनेज करता है. कौन? HLR. ओके, होम लोकेशन रजिस्टर. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट VLR. VLR is a main component of NSS. ये क्या है? ये अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो वो है विजिटर लोकेशन रजिस्टर. विजिटर लोकेशन रजिस्टर से हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं? जब भी जो यूज़र है अगर वो आउट ऑफ स्टेशन है इन रोमिंग एरिया, वो जो उस टाइम पे पर्टिकुलर लोकेशन को जब ट्रैक करते हैं या फिर उस एरिया की जो पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है वो कहाँ स्टोर होगी? VLR. ओके, ये इस इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है. ओके, these are the main component of NSS. NSS is what? Network switching subsystem. Okay, what is BSC? BSS. Okay, what is BSS? is a base station subsystem. अब ये क्या करता है? जो रेडियो कम्युनिकेशन है उसको हैंडल करने का काम क्या करता है? BSS. मोबाइल जो हमारा मोबाइल है उसके मोबाइल डिवाइस और नेटवर्क के बीच में जो ये सिग्नल्स मूव होते हैं, रेडियो कनेक्शन जो है इसको हैंडल करने का काम कौन करता है? BSS. ओके, एंड व्हाट इज MSC? MSC इज़ मोबाइल स्विचिंग सेंटर जो कॉल रूटिंग को हैंडल करता है, सेटअप को, और मोबिलिटी मैनेजमेंट. मोबिलिटी मैनेजमेंट मींस कि हमारा जो मोबाइल, हम जब फ़ोन कॉल पे होते हैं तो हम अगर मूव कर रहे हैं या फिर ड्राइविंग टाइम पे जो हमारा जो नेटवर्क है वो चेंज हो रहा है, उस टाइम पे जो हमारी पर्टिकुलर जो लोकेशन है वो ट्रैक करने का जो काम है वो कौन करता है? MSC. तो हमारे जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन, वो कहाँ स्टोर होती है? MSC पे स्टोर होती है. ओके, व्हाट इज़ OSS? अगर हम OSS की बात करें तो ये क्या है? ये एक ऑपरेशन एंड इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑपरेशन एंड सपोर्ट सबसिस्टम. ये क्या करता है? ये नेटवर्क को मैनेज करना और मेंटेन करने का काम किसका है? OSS का.
ओके। जो भी हमारा कंप्लीट GSM कंप्लीट जो एंटायर सिस्टम है, इसको कंट्रोल करने का, इसको मेंटेन करने का जो वर्क है वो कौन हैंडल करता है? OSS। ओके। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Our next question is, consider the following two statements in SaaS cloud service model application are provisioned, and S2 statement 2 is Amazon's Elastic Computing Cloud EC2 is a well-known cloud storage. Here option A is correct and S1 is correct, but S2 is not. Okay, and why we are saying S1 is correct. What is SAS? SAS means software as a service. सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या है? जो क्लाउड सर्विसेज जो हमें जो मॉडर्न एरा है इसमें हमें क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड की हैं हमें वो। ये बेसिकली क्या है? अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊं तो वो क्या है, जैसे हम जीमेल यूज़ करते हैं, ठीक है। जीमेल के लिए हमें पर्टिकुलर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है अपने कंप्यूटर में। हम डायरेक्टली क्या करते हैं, जो जीमेल है इस सॉफ्टवेयर को लॉगिन करते हैं और वहाँ अपनी डिटेल्स के बाद हम इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर। तो ये जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करेगा? सेस। ओके, सेस के अंदर ये फैसिलिटी है। और अनदर एग्जांपल इज़ गूगल डॉक। गूगल डॉक में भी क्या रहता है, हमें सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में राइट करना है, उसको सेव करना है और जस्ट यूज़ करना है विदाउट इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर। एंड इन अमेजोन इलास्टिक कंप्यूटिंग क्लाउड EC2, अब ये क्या है? ये एक क्लाउड स्टोरेज नहीं है, ठीक है। ये क्लाउड स्टोरेज नहीं है क्योंकि जो EC2 है ये किसका पार्ट है? IaaS। आईएस मीन्स क्या है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। क्या है ये? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का पार्ट है। बेसिकली ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? एक वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करता है, ओके जिसमें हमारा पर्सनल क्या हो सकता है, हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर या फिर डाटाबेस को हम क्या कर सकते हैं? इंस्टॉल करके हम उसमें अपना एक मिनी डाटा क्या करवाते हैं? मिनी डाटा को अपना एक्सेस करते हैं। कंप्यूटिंग करने का जो काम है हम किस में करेंगे? EC2 में, आईएस जो अपना क्लाउड सर्विस है इसमें। okay, so the option statement 1 is correct here and statement 2 is wrong. Now move to the next question. What is this? Here हमें क्या करना है? मैच करना है। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट वन इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बेसिकली क्या है? ये एक हमें क्या करता है? ये हमें रूल्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। कोई भी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स हो सकते हैं या फिर ये अपना नेचुरल लैंग्वेज के ये हमें क्या करता है? एक स्ट्रक्चर, एक रूल प्रोवाइड करता है। ओके, एंड इसका जो अपना ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट हियर। ओके, लेक्सिकल एंड सिंटैक्स रूल, जो CFG है बेसिकली ये हमें टू टाइप के रूल प्रोवाइड करता है। नंबर 1 इज लेक्सिकल एंड सेकंड वन इज सिंटैक्स। लेक्सिकल में क्या रहता है? लेक्सिकल हमें प्रोवाइड करता है कि लेक्सिकल में ये हमें कोई भी वर्ड जैसे टाइप करना है, ठीक है, वो वर्ड वैलिड है कि नहीं अकॉर्डिंग टू CFG। ओके, ये प्रोवाइड करता है कि वैलिड वर्ड। एंड सिंटैक्स में क्या रहेगा? जितने भी अपने इंडिविजुअल वर्ड्स हैं या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम आइडेंटिफायर्स कीवर्ड्स इनका यूज़ करते हैं, ये मिल करके जो है एक कंप्लीट एक मीनिंगफुल सेंटेंस या स्टेटमेंट बना रहे हैं कि नहीं। ओके, लेक्सिकल में क्या होता है? सिंगल वर्ड पे फोकस करता है कि वो जो वर्ड है वो वैलिड है कि नहीं। और सिंटैक्स में हम क्या करते हैं? उन वर्ड्स को कंबाइन करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस को जनरेट करते हैं। ओके, एंड सेकंड वन इज कोड ऑप्टिमाइजेशन। Code optimization is what? Code optimization means
कि हमने जो भी कोड राइट डाउन किया है, ठीक है, उसका प्रॉपर तरीके से क्या होना चाहिए, यूटिलाइजेशन होना चाहिए, एक बेनिफिट, जिससे हम क्या कर सकें, टाइम को सेव कर सकें और अपना कंप्यूटर की मेमोरी को सेव कर सकें। तो इसके लिए जो ऑप्शन है अपना वो है कोड मोमेंट। ओके, कोड मोमेंट में क्या रहेगा, कोड मोमेंट में हमने सपोज कि हमने एक लूप लिया है, उसको अगर हमने 100 टाइम रन कर दिया, ओके, 100 टाइम भी अगर हम एक लूप को रन करेंगे, अगर उसका आउटपुट सेम है, तो हमने जो इसके इनसाइड जो भी हमने लूप के इनसाइड जो भी वेरिएबल लिया है, अगर हम उसको आउटपुट हम लूप से आउटसाइड अगर हम उसको डिक्लेयर करेंगे, तो ये क्या करेगा, हमें 1 टाइम में रिज़ल्ट को शो करेगा, जिससे क्या होगा, हमारा जो आउटपुट है उस आउटपुट जनरेट करने में एक तो टाइम कम लगेगा, और सेकंड हमारा जो मेमोरी है वो सेफ रहेगी। ओके, और ये कोड मोमेंट का जो रहता है ये कब होगा, ये कंपाइल टाइम पे। ओके, एंड थर्ड वन इज ग्लोबल रजिस्टर अलोकेशन। ग्लोबल रजिस्टर अलोकेशन, इसका जो टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं, इसमें जो टर्म है वो क्या रहेगी, अपना लीनियर स्कैन। लीनियर स्कैन में क्या रहता है, जैसे रजिस्टर कहाँ स्टोर होते हैं, सीपीयू में ही हम किसको स्टोर करते हैं, रजिस्टर को। रजिस्टर एक स्टोरेज डिवाइस है, बहुत ही स्मॉल, और इसका स्मॉल साइज़ होने की वजह से ये डाटा को बहुत ही क्विकली फैच करता है। ओके, एंड ग्लोबल मीन्स हम क्या करेंगे, कोई भी वेरिएबल अगर हमने डिक्लेयर किया है, वो कंप्लीट एक फंक्शन के लिए ही हमने डिक्लेयर किया है। एंड लीनियर स्कैन क्या करता है, जब भी हमारा जो प्रोग्राम है जो रन हो रहा है, ठीक है, उस टाइम पे ये चेक करेगा कि जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं उस वेरिएबल को पर्टिकुलर रजिस्टर अलोकेट हुआ है, और वो कितने टाइम के लिए अलोकेट हुआ है। तो ये कौन शो करेगा, लीनियर स्कैन। ओके, व्हाट इज़ सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस में बेसिकली क्या है, ये एक एनालिसिस करता है हमारे हमने जो स्टेटमेंट बनाया है, उसमें जो सिंटैक्स जो स्ट्रक्चर हमने यूज़ किया है वो करेक्ट है कि नहीं, एंड ये इसका जो टर्म हम मैच करेंगे वो क्या है, अपना टाइप चेकिंग। टाइप चेकिंग में क्या रहेगा, अगर हमने डिक्लेयर कर दिया, सपोज़ कि हमने फंक्शन में डिक्लेयर किया है इंट, और इसके इनसाइड हमने ABC समथिंग कुछ भी और हेलो हमने क्या करवा दिया, अगर हमने हेलो गिवन कर दिया, तो मतलब क्या है, हमने डिक्लेयर किया है इंटीजर नंबर, और हमने वैल्यू क्या पुट कर दी, किसकी, स्ट्रिंग की। हेलो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रिंग को। तो ये जो है टाइप चेकिंग, ये चेक करेगा कि ये दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं। अगर ये मैच नहीं हो रहा तो एरर शो होगा। ओके, बिकॉज जो हमने डिक्लेयर किया था और जो हमने वैल्यू पुट की है वो दोनों डिफरेंट है। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1 second, our next question is this: consider the following relation. 1 second. Consider the following relation in the database. Work this and following query. Always find those distinct and company name and average salary greater than employee average salary at Samsung. हमें क्या बताना है यहाँ पे, which query is suitable for this question. Here option A is correct. हमें इसमें बेसिकली हमने क्या सिलेक्ट करना है, रिलेशन किसको शो करता है, टेबल को। ओके, एंड वर्क क्या है हमारी, टेबल, और एम्प्लॉय नेम एंड कंपनी नेम एंड सैलरी हमारे क्या हैं, कॉलम्स हैं। क्या है हमारे, कॉलम। एंड हमें इसमें क्या है, जो एम्प्लॉय नेम है हमने क्या दिया है, प्राइमरी की। एम्प्लॉय नेम को प्राइमरी की बेसिकली क्या है, प्राइमरी की एक ऐसा हमारे टेबल में एक यूनिक रिकॉर्ड को शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्राइमरी की का। और हम इसके अंदर नल वैल्यू को इंसर्ट नहीं करते हैं, जितना भी रिकॉर्ड रहेगा वो हमारे पास क्या रहता है, यूनिक। और जो एम्प्लॉय नेम है ये हमने क्या लिया है, प्राइमरी की।
ओके। एंड ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हेयर। हम सेलेक्ट करेंगे, क्या करना है हमें, कंपनी नेम सेलेक्ट करना है। हम कंपनी नेम क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें ऐसा विच कंपनी नेम हुज एम्प्लॉय एवरेज सैलरी ग्रेटर देन द एम्प्लॉय एवरेज सैलरी एट सैमसंग। ओके, हमें ऐसी कंपनी का नाम बताना है जिसकी जो एवरेज सैलरी है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर किससे, सैमसंग से। ओके, हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया कंपनी नेम, कौन सी, कहाँ से किया है, वर्क टेबल से। सो हमने लिखा सेलेक्ट कंपनी नेम फ्रॉम वर्क्स एंड ग्रुप बाय कंपनी नेम, क्योंकि कंपनी के काफ़ी सारे नेम अगर हमने डाटा में इंसर्ट किए हैं तो उन ग्रुप में से हमने क्या लेना है, कंपनी नेम। एंड हैविंग एवरेज सैलरी ग्रेटर देन, select average salary from work and where company name is equal to Samsung. So query 1 is correct here. Our next question is what is needed by K-mean cluster. ओके, व्हाट इज़ क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग बेसिकली जब भी हम लार्ज डाटा अगर हमें प्रोवाइड होता है, उस लार्ज डाटा में जब हम एक ग्रुप के फॉर्म में डाटा को कलेक्ट करते हैं, वो क्या होता है अपना क्लस्टरिंग। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं। और अगर हम बात करें के मीन्स के क्लस्टरिंग की, तो के क्लस्टरिंग क्या है, ये एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। ये ऐसा एल्गोरिथम है जिसमें जो हमारा इतना लार्ज डाटा है उसको डिवाइड करता है टू फॉर्म में, एक है सिमिलर और एक डिसिमिलर। मतलब सिमिलर डाटा का एक अलग क्लस्टर बनेगा और डिसिमिलर डाटा का एक अलग क्लस्टर होगा। ओके, हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, डिस्टेंस मैट्रिक, नंबर ऑफ क्लस्टर, एंड थर्ड वन इज इनिशियल गैस टू द क्लस्टर सेंट्रॉइड। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस मैट्रिक्स में अगर हम बात करें तो ये क्या है, बेसिकली जब भी हम ट्रैवल करते हैं, ओके, अगर हमें ट्रैवल करना है, हमने कोई भी प्लान बनाया है कहीं पे विज़िट करने का, तो उसमें हम क्या करेंगे, जब भी हमने गूगल मैप का यूज़ करेंगे तो गूगल मैप में हम क्या करेंगे कि हमारी जो करंट लोकेशन है, अगर उसके आस पास जहाँ पे भी हमारा जो डेस्टिनेशन है वो एक शॉर्ट वे में हम उसको कवर कर पाएँ, जिससे हमारा जो टाइम है वो सेव हो पाए, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मैट्रिक। इस टाइम पे हमने क्या किया, इतनी सारी इंफॉर्मेशन में से हमने क्या किया, कलेक्ट किया जो हमारे राउंड अबाउट है, ठीक है, जो हमसे सिमिलर है, वो हमने सिलेक्ट की है। एंड नंबर ऑफ क्लस्टर मीन्स हमने क्या किया है, अभी हम जिस लोकेशन पे हैं उसके आइड साइड में जितने भी प्लेसेस हैं जिन जो हमें विज़िट करने हैं, उसके लिए हमने क्या किया है, ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया कि पहले हमें इस प्लेस पे जाना है, सेकंड वन इज़ दिस एंड थर्ड वन इज़ दिस। तो हमने क्या कर दिया, नंबरिंग कर दिया इन्फॉर्मेशन को, एक ग्रुप को। ओके, एंड इनिशियल गैस टू द क्लस्टर सेंट्रोइड, इनिशियल गैस विच मीन्स कि जब जहाँ पे भी हमने प्लान किया है घूमने का, वहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा इनिशियल जो कलेक्शन रहेगा डाटा का, वो क्या रहेगा कि हमें एक ऐसी लोकेशन को इनिशियलाइज करना है, मतलब वहाँ से स्टार्ट करें जहाँ से हम मूव करते करते हर एक प्लेस को अच्छे से विज़िट कर पाएँ। हमारा जो स्टार्टिंग प्लेस है वो इनिशियल जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होनी चाहिए, जहाँ से हम क्या कर पाएँ, बहुत ही प्रॉपर तरीके से हम उस एरिया को कवर अप कर पाएँ एंड नेक्स्ट वन बाय वन मूव करें। ओके, ये हमारा क्या है, इनिशियल गैस क्लस्टर सेंट्रोइड। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज how many standard exception exist in C++? What is this? Here option C is correct. It's 7. Okay. How can we say what is standard exception? अगर हम exception की बात करें तो ये basically क्या है, ये show करता है एरर हैंडलिंग को। जब भी हमने प्रोग्राम को रन किया है C++ में, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। एंड स्टैंडर्ड एक्सेप्शन का मीन्स क्या है, स्टैंडर्ड एक्सेप्शन में क्या होता है, प्री डिफाइंड एरर क्या होती हैं, क्लासेस। ओके, ये पहले से डिसाइड रहता है
कि नॉर्मली जो हमारे एरर्स हैं जो रन टाइम पे प्रोग्रामिंग में जो अक्कर होते हैं उसके लिए हमने क्या करा है, प्री डिफाइंड एरर क्लासेस को। ओके एंड अगर हम एक्सेप्शन स्टैंडर्ड की बात करें तो नंबर 1 इज लॉजिक एरर। व्हाट इज लॉजिक एरर? ओके, लॉजिक एरर की अगर हम बात करें तो लॉजिक एरर कब अक्कर होगा? सपोज कि हमने कोई भी नंबर लिया, अगर हमने उसको ज़ीरो से डिवाइड कर दिया, ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये क्या शो करेगा, लॉजिक एरर एक्सेप्शन को शो करेगा जब भी हमारा प्रोग्राम रन हो रहा होगा। ओके एंड सेकंड वन इज सेकंड वन इज रन टाइम एरर। क्या है अपना रन टाइम एरर? रन टाइम एरर में क्या होगा? रन टाइम एरर बेसिकली क्या है, जब भी हमने कोई भी फाइल ओपन की है, अगर फाइल ओपन करना चाहते हैं या फिर हमने अपने प्रोग्राम में एक ऐसी फाइल का नाम रखा है जो फाइल हमारा जो सिस्टम है उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये हो जाएगा अपना रन टाइम एरर। ओके और नेक्स्ट वन इज़ बैड अलॉग। ये एक्सेप्शन क्या है? इस एक्सेप्शन में अपना क्या रहेगा, जो कंप्यूटर है अब उसमें अगर हमने एक लार्ज अरे दिया है डाटा को स्टोर करवाने के लिए, और जब हमारी मेमोरी आउट ऑफ जब हमारा कंप्यूटर जो है आउट ऑफ मेमोरी शो करता है, ओके, तब उस टाइम पे जो एरर अकर होता है बैड अलॉग। कौन सा अकर होता है? बैड अलॉग। एंड नेक्स्ट वन इज बैड कास्ट विच मीन्स कास्ट मीन्स जब भी हम किसी भी अपने डाटा को क्या करवाते हैं, कोई भी डाटा है हमारे पास उसको हमें ट्रांस कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमने अगर हम बात करें अगर हमें इंट को सपोज हम इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट। जब भी हमने प्रोग्राम को रन किया है, अगर हमने डिक्लेयर इंट किया है और हमने जो वैल्यू पुट की है वो स्ट्रिंग में कर दी है, तो ये हमारा जो कौन सा एक्सेप्शन शो होगा? बैड कास्ट का, बिकॉज हम इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट्स वाई। एंड आर नेक्स्ट एक्सेप्शन इज बैड टाइप आईडी। व्हाट इज बैड टाइप आईडी? ये क्या है अपना, इसमें कोई भी हमारा जो हमने कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, ओके, जब वो हमारे प्रोग्राम में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तब हमने किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमने डिक्लेयर किया है, तब हमारा जो है कौन सा एक्सेप्शन आएगा? बैड टाइप आईडी। ओके एंड नेक्स्ट वन इज बैड एक्सेप्शन कौन सा कब शो होगा हमें? बैड एक्सेप्शन में जब हमने फंक्शन को रन किया, प्रोग्राम को हमारा रन किया है और हमने उसमें फंक्शन ही डिक्लेयर नहीं किया, क्या फंक्शन ही अगर हमने डिक्लेयर नहीं किया, तो उस टाइम पे जो एरर शो होगा वो होगा बैड एक्सेप्शन। ओके एंड नेक्स्ट वन इज एक्सेप्शन कब शो होगा? जब हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा एरर क्या होगा, ठीक है। प्रिडिक्शन, जब हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि हमारा क्या एरर हो सकता है, तब हमें क्या शो होगा? एक्सेप्शन। ओके, our next question is, we have completed 3 standard exception. Number 1 is logic error, and second one is run error, third one is bad alloc, fourth one is bad cast, fifth one is bad type id, and next one is bad exception, and next one is exception. Okay, our next question is, one second. Our next question is this one. Which of the following input output technique uses interrupt to take attention of CPU processor? Okay, option 1 is programmed input output, and second one is interrupt driven input output, and third one is direct memory access. Here option C is correct. Input driven
input output, and interrupt driven input output, and the third one is direct memory access. Okay, what it is, अगर हम बात करें, जब भी हमारा प्रोसेसर है, हमारा सीपीयू है, जब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को एक्सेस करना होता है, उस टाइम पे हमारा जो सीपीयू है हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो होती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डीएमए। इसमें क्या है, डायरेक्ट जो है हमारा डाटा फेच होता है मेन मेमोरी से, और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू। उस टाइम पे जब हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, ओके, सीपीयू किस में अंगेज होता है, अपने कुछ भी इम्पोर्टेंट वर्क को परफॉर्म करने के लिए, और उस टाइम पे हमारा क्या होता है, टाइम सेव होता है सीपीयू का, क्योंकि वो अनदर वर्क करता है और इसमें जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट होती है, क्योंकि सीपीयू का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता डाटा को फेच करने में। ओके, ये होता है डीएम के थ्रू। अगर हम बात करें इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट में क्या रहेगा, इस टाइम पे जो अपना सीपीयू है, अपना प्रोसेसर है, ये इनपुट और आउटपुट दोनों को ही क्या होता है, डाटा ट्रांसफ़र करता है, कि जो भी उनको इनपुट और आउटपुट को जो भी वर्क परफॉर्म करना है वो अपने लेवल पे अपना जो वर्क है, जो टास्क है वो कंप्लीट करते हैं, और जैसे ही उनका टास्क कंप्लीट होता है तो वो सीपीयू को क्या करते हैं, एक इंटरप्ट, एक सिग्नल पास करते हैं सीपीयू को, जिससे सीपीयू को अंडरस्टैंड हो पाता है कि उनका जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो सीपीयू क्या करेगा, जिस भी काम में वो रनिंग है वो उसको रिज्यूम करेगा, एंड वो जो भी डाटा इनपुट आउटपुट डिवाइस ने दिया है वो उसको हैंडल करेगा, और फिर अगेन अपने उस टास्क को रिज्यूम करेगा। ओके, एंड इससे क्या होता है, एक तो टाइम सेव होता है, और एक जो प्रोसेस है वो फास्ट होती है। एंड प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, इसमें क्या रहता है, इसमें टाइम वेस्टेज ज़्यादा होता है। कैसे, जो हमारा सीपीयू है उसको इनपुट और आउटपुट को बार बार क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि कहीं इनपुट या फिर आउटपुट डिवाइस फ्री तो नहीं है, टास्क अलोकेट करवाने के लिए बार बार जो सीपीयू का उनको चेक करना है, ये क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसीलिए ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज the statement P Q, this one is P Q and R, these are propositional variable. What it is, propositional variable, ये क्या करते हैं, जो भी हमारे ये वेरिएबल्स हैं, ये बेसिकली जो स्टेटमेंट्स हम अज्यूम कर सकते हैं, या फिर जो भी हम स्टेटमेंट अपने प्रोग्राम में हमने दी हैं, ये ट्रू हैं कि फॉल्स हैं, ये बताते हैं। क्या, प्रोपोजिशनल वेरिएबल के थ्रू हम फाइंड करते हैं कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। अगर हम बात करें, हेयर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, अ टूटोलॉजी, व्हाट इट इज़। अगर मैं सिंबल को डिफाइन करूं, ये जो सिंबल है ये क्या है अपना, इसको बोलते हैं डिसजंक्शन। क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। ये अपना क्या बताता है, ये रिप्रेजेंट करता है लॉजिक और को। लॉजिक और मीन्स क्या है, जो भी स्टेटमेंट हम प्रोवाइड करेंगे उन पोजीशंस में से, जो भी स्टेटमेंट है, लगा लो पोजीशन लगा लो, अगर हमने दो स्टेटमेंट दी हैं, उनमें से अगर एक स्टेटमेंट हमारी ट्रू है तो हमारा जो लॉजिकल और है, मतलब डिसजंक्शन है, ये ट्रू होगा। ओके, एंड दिस सिंबल इज रिप्रेजेंट कंजंक्शन विच मीन्स ये लॉजिकल एंड को रिप्रेजेंट करता है। लॉजिकल एंड में क्या होता है, जब दोनों ही स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट दोनों ही ट्रू हैं, तो लॉजिकल एंड क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। एंड दिस वन इज निगेशन। ये क्या है अपना, ये अपना सिंबल होता है निगेशन, लॉजिक नोट का। किसका, लॉजिक नोट का, कि जो भी स्टेटमेंट है अगर वो नेगेटिव स्टेटमेंट शो हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। एंड ये जो सिंबल है ये अपना क्या है, मटीरियल इम्प्लिकेशन।
मटीरियल इम्प्लीकेशन विच मीन्स कि हम क्या करेंगे, जो भी हमने हमारी जो प्रीमाइस हैं अगर वो ट्रू हैं, अगर हमारा कंक्लूज़न फॉल्स है तभी ये हमारा क्या शो होगा, आउटपुट फॉल्स शो होगा। अदरवाइज अगर हमारी प्रीमाइस ट्रू है, कंक्लूज़न भी ट्रू है, तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो ट्रू रहेगा। ओके अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लें, टूटोलॉजी बेस पे क्या रहेगा, जो भी स्टेटमेंट टूटोलॉजी में होता है हमेशा ये ऑलवेज क्या रहेंगी, ट्रू रहेंगी। बिकॉज टूटोलॉजी में जो प्रीमाइसिस हम देते हैं वो ट्रू रहते हैं और उसका कंक्लूजन भी ट्रू ही आता है। सपोज कि हमारे पास एक ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास, जैसे पी एक ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, एंड क्यू हमारा एक ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास कॉलेज डिग्री है, आर जिसके पास अपना स्किल टेस्ट है। ओके पी एंड क्यू, अब हमने क्या यूज़ किया है, डिसजंक्शन, मतलब हमने क्या किया है, लॉजिक और को हमने यूज़ किया है। मतलब या तो पी के पास क्या होगा, या तो पी के पास वर्क एक्सपीरियंस होगा या फिर क्यू के पास कॉलेज डिग्री, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू हुआ। एंड दिस इज़ कंजंक्शन, इसमें हम लॉजिक और का हम यूज़ करेंगे, जिसमें जो कैंडिडेट पी है उसके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, बट आर के पास क्या है, आर के पास स्किल टेस्ट है। अब इसमें से क्या होगा, एक स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है, क्योंकि इसमें डिसजंक्शन का हमने यूज़ किया है सिंबल। दैट्स वाई एक कंडीशन अगर ट्रू है तो ये हमारा जो कंक्लूजन है ये हमारा ट्रू हुआ। एंड क्यू एंड आर में भी क्या रहेगा, क्यू के पास अपना कॉलेज डिग्री है, आर के पास क्या है, स्किल टेस्ट है। अब ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए, ट्रू। तो ओवरऑल जो है प्रीमाइसिस भी हमारी ट्रू है और जो कंक्लूजन है वो भी हमारा ट्रू है। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। टूटोलॉजी हमेशा एक ट्रू कंक्लूड करता है स्टेटमेंट्स को। एंड कॉन्ट्राडिक्शन में क्या रहेगा, कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स अगर हम बात करें लाइट की, लाइट या तो ऑन होगी या फिर ऑफ होगी। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि लाइट ऑन भी हो रही है और लाइट ऑफ भी हो रही है। ओके इन दोनों में से सिर्फ एक ही सिचुएशन हो सकती है कि या तो लाइट ऑन रहेगी या फिर लाइट ऑफ रहेगी। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन है, ये हमेशा फॉल्स रहती हैं। ओके नीदर आर टोटोलॉजी नॉर आ कॉन्ट्राडिक्शन, ये डिपेंड करेगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव, मतलब ट्रू भी हो सकता है और ये फॉल्स भी हो सकता है, ये फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, our next question is, which of the following optimization problem can be better solved with order GA? What is GA? GA is genetic algorithm. What is genetic algorithm? ये बेसिकली क्या है, ये अपना एक ऑप्टिमाइजेशन मेथड है। ऑप्टिमाइजेशन मेथड मीन्स जिसमें हम बहुत ही जो भी हमारा आउटपुट है वो कैसा शो होता है, मतलब बहुत ही बेनिफिशियल जो रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड करता है, बहुत ही बेटर, जो सबसे बेस्ट रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है वो होता है ऑप्टिमाइजेशन। अब जो जीए है अपना जेनेटिक एल्गोरिथम है, ये एक ऑप्टिमाइजेशन मेथड है जो किससे इंस्पायर है, अपने नेचुरल इवोल्यूशन से। इसमें हम थिंग्स को हमें माइंड में रखना चाहिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जीए के लिए। नंबर 1 सिलेक्शन, एंड सेकंड वन इज़ क्रॉस ओवर, एंड थर्ड वन इज़ म्यूटेशन। ये हमारे जो भी प्रॉब्लम है उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन को हम क्या करता है, बेस्ट सॉल्यूशन को फाइंड करता है। कौन, जीए, जेनेटिक एल्गोरिथम। ओके अगर हम बात करें व्हाट इज सिलेक्शन, सिलेक्शन मीन्स अगर हमने कोई भी अगर हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, सपोज कि हमने स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया है, ठीक है, उस टेस्ट में जिसके हाईएस्ट स्कोर रहेंगे हमने उस स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लिया। मीन्स हमने ग्रुप में से, इतने सारे डाटा में से सिर्फ एक को चूज़ किया है, मतलब हमने क्या किया है, सिलेक्ट किया है एक बेस्ट ऑप्शन को। एंड सेकंड वन इज़ क्रॉसओवर। क्रॉसओवर में क्या रहेगा, सपोज कि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं जिनका जो जिनकी जो इंटेलिजेंस है वो काफ़ी हाई है। जब हम उन दोनों की इंटेलिजेंस को मेज़र करके एक थर्ड
एक हाइब्रिड आइडियाज़ को जनरेट करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉसओवर। हमने क्या किया, टू पर्सन्स के इंटेलिजेंस या फिर आइडिया हम बोल सकते हैं, टू पर्सन्स के पास कुछ डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ हैं, बेस्ट आइडिया हैं, उससे हमने एक थर्ड वन को जनरेट किया है, हम उसको बोल सकते हैं क्रॉसओवर। अगर हम बात करें म्यूटेशन की, म्यूटेशन के अंदर क्या है कि अगर हमारा हमें रैंडमली स्लोली अगर हमें खुद में इम्प्रूव करना है, ओके, किसी भी स्टूडेंट को इम्प्रूव करवाना है, तो वो किससे होगा, वो अपना होगा म्यूटेशन में। किस में होगा, म्यूटेशन में। हम क्या करते हैं, स्लोली एंड रैंडमली मूव करते हैं, स्लोली एंड जिससे इम्प्रूव होता है। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा अपना, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम इज़, ये क्या है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम इज़ अ ऑर्डर्ड जेनेटिक एल्गोरिथम, इसीलिए ये हमारा बेस्ट है यहाँ पे। बिकॉज ऑर्डर्ड जेनेटिक मीन्स क्या है, हमें एक ऑर्डर में, हमें एक वे में अपनी टास्क को परफॉर्म करना है। ट्रैवलिंग सेल्समैन क्या करता है, ट्रैवलिंग सेल्समैन है, अगर उसको अपना जो भी प्रोडक्ट है अगर वो डिलीवर करना है, तो उसके लिए एक उसके पास एक ऑर्डर्ड एक लॉजिक होता है अपने टास्क को करने का। अगर पहले उसने ए हाउस में विजिट किया है, देन वो बी हाउस में विजिट करेगा, देन सी, मतलब वो क्या रहेंगे, बिल्कुल ही साइड में, मतलब वो क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ को चूज़ करता है कि वो अपने ओवरऑल नियर बाय सारे डेस्टिनेशन को कवर कर पाए। ओके, तो ये ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है। एंड फर्स्ट वन में क्या रहेगा, 01 नैपसैक प्रॉब्लम। नैपसैक प्रॉब्लम बेसिकली इसमें ये एक बाइनरी अप्रोच का हम यूज़ करते हैं। बाइनरी मीन्स अगर हमने अपना कहीं पे ट्रैवल करना है, उसके लिए कुछ पैकिंग करनी है, ठीक है, उसमें जो हमारा जो सामान है वो कुछ लिमिटेड होता है, ठीक है, जैसे हमें लैपटॉप लेकर जाना है या फिर वाटर बॉटल है और मोबाइल है, ये हमारे क्या हैं, एसेंशियल आइटम्स हैं। अगर इनमें से भी अगर हमें चूज़ करना है, तो हमारे पास क्या होंगे, दो ही ऑप्शन रहेंगे, या तो हम उसको रखेंगे या फिर हम उसको लीव करेंगे। ओके, टेक या लीव का दो ही ऑप्शन हमें देता है, और इसीलिए ये हमारा क्या है, हम इसमें ऑर्डर को फॉलो नहीं करते। ओके, ये किस पे होता है, सिलेक्शन के बेस पे होता है, या तो हम टेक करेंगे उस आइटम को या तो हम उसको लीव करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, नैपसैक प्रॉब्लम। एंड जॉब शॉप स्केड्यूलिंग प्रॉब्लम में, जॉब शॉप स्केड्यूलिंग प्रॉब्लम, इसमें बेसिकली क्या है तो ये भी एक ऑर्डर जेनेटिक एल्गोरिथम, बट ये बेस्ट नहीं है, बिकॉज इसमें क्या होता है, कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनकी वजह से जो ये अपना ट्रैवलिंग सेल्समैन है प्रॉब्लम, ये बेस्ट ऑप्शन बन जाता है यहाँ पे। जॉब शॉप स्केड्यूलिंग में क्या रहेगा, सपोज़ कि हमें कार को रिपेयर करवाना है। ओके, कार को जब हम रिपेयर करवा रहे हैं और अगर हम उसमें पेंटिंग भी चाह रहे हैं और हमें उसके काफ़ी सारे जो पार्ट्स हैं उनको रिपेयर करवाना है, तो पहले क्या होगा, और रिपेयरिंग होगी, और पहले जो व्हील हैं पहले उनको हमें क्या करेंगे, पेंट, मतलब उनकी जो व्हील्स को रिपेयर करने के बाद ही हम कार को क्या कर पाएंगे, पेंट कर पाएंगे, क्योंकि पेंटिंग का काम क्या होगा, वो लास्ट में होगा अकॉर्डिंग टू लॉजिक। ऐसा तो है नहीं कि पहले हम पेंट कर देंगे उसको बाद में रिपेयर कर रहे हैं, तो ये क्या है, लॉजिकली रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमें इसमें कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स, कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। दैट्स वाई जॉब शॉप स्केड्यूल यहाँ पे ऑप्शन में करेक्ट नहीं है। एंड ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम, इसमें क्या हो, इसमें बेसिकली क्या है, ये भी अपना बाइनरी सर्च के ऊपर डिपेंड करता है। बाइनरी सर्च मीन्स सपोज कि अपने पास जो भी हम ऑनलाइन डिक्शनरी का हम यूज़ करते हैं, ओके, उसमें हमें कोई भी वर्ड फाइंड करना है, कुछ वर्ड क्या होते हैं, जैसे ही हमने हमारा कर्सर उसमें सिलेक्शन बार में अगर हमारा कर्सर है तो उसके नीचे हमें कुछ वर्ड्स रहेंगे गिवन, वो क्या रहते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्किंग, जो बिल्कुल ही ज़्यादा जो यूज़ में होते हैं, जिसको ज़्यादा सर्च करते हैं पर्सन, इसीलिए वो वर्ड जो हैं वो वहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। ये किस वजह से हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमल बाइनरी सर्च। या फिर हम बोल सकते हैं कि जैसे यूट्यूब पे अगर हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा सर्च करते हैं तो वो हमें क्या होता है, शो होता है, वो किसकी वजह से हो रहा है, तो ऑप्टिमल बाइनरी सर्च। ये भी अपना क्या है, ऑर्डर्ड जेनेटिक एल्गोरिथम में इंक्लूड नहीं होता। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
सेकेंड। Our next question is, under what condition can a vortex combine and distribute the flow in any manner? If I am talking about वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है? अपना नोड, नोड क्या है? जैसे एक कंप्यूटर है, ओके, उसमें क्या होता है, कंप्यूटर में बहुत सारा डाटा हम सेव करते हैं। कंबाइन, कंबाइन मीन्स डाटा, जब भी हम डाटा को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमारा क्या है, डाटा। वर्टेक्स कंबाइन मतलब हम एक नोड में, एक कंप्यूटर में हम डाटा को लोड कर रहे हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूट फ्लो, डिस्ट्रीब्यूट फ्लो मीन्स जितना डाटा हमने इनटेक किया है, अगर हम डाटा को उसी डायरेक्शन में सेम वे में हम फ्लो करते हैं, मतलब हमारा जो सेंडिंग डाटा, अगर हम एक स्मॉल एग्जांपल लें तो अगर 100 MB है, तो हमारा जो रिसीविंग डाटा है अगर वो भी सेम है 100 MB, तो हमने क्या किया, वर्टेक्स कंबाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट फ्लो, ओके। और ये किस किस कंडीशन में होता है, ये अपना होता है, इट शुड मेंटेन द फ्लो कंजर्वेशन। ये क्या किसको मेंटेन करता है, ये अपना मेंटेन करता है फ्लो कंजर्वेशन को। अगर हम बात करें तो नेटवर्क फ्लो एल्गोरिथम बेसिकली यहाँ पे वर्क करता है, क्योंकि इसमें क्या है, अपना मैक्सिमम और मिनिमम फ़्लो को हम यूज़ करते हैं। ये जो फ़्लो कंजर्वेशन रूल, फ़्लो कंजर्वेशन रूल में बेसिकली जितना भी हम डाटा को टेक कर रहे हैं, उतना ही डाटा हम क्या कर रहे हैं, हम सेंड कर रहे हैं, उतना ही रिसीव कर रहे हैं, ओके। एंड वायलेट एज कैपेसिटी में क्या रहेगा, वायलेट एज कैपेसिटी में जितना, मतलब अगर हमें डाटा, हम बहुत, जो हमारा वायर कैपेसिटी है वो कम है, और अगर हम ज़्यादा डाटा अपलोड करवा रहे हैं तो वो हमारे किस में आएगा, वायलेट एज कैपेसिटी में। अगर हम बात करें, अ वर्टेक्स शुड बी सोर्स वर्टेक्स, सोर्स वर्टेक्स में क्या रहेगा, सोर्स वर्टेक्स बेसिकली इसमें जब भी हमारा जो डाटा है, जो भी हमारी सोर्स के थ्रू जो भी डाटा हमने क्या किया है, इनटेक किया है, एंड सिंक वर्टेक्स में जो भी डाटा हमारा लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, उसको हम सिंक वर्टेक्स में बोल सकते हैं। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट वन इज, consider a relation RABCD with the functional dependencies FA belongs to B, AB belongs to C, and D AC, and which of the following statement is true about the given schema R? अगर हम इसकी बात करें, मिनिमल कवर फॉर द गिवन सेट F डज नॉट एग्जिस्ट एंड द कैंडिडेट की ऑफ द गिवन स्कीमा R, अगर हम ये बात करें तो ये अपना क्या है, ये इसमें आएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉट सेकंड। हाउ, ये हम कैसे बोलेंगे कि हमारा जो ये जो डाटा है वो क्या है, रिलेशन। व्हाट इज़ रिलेशन, रिलेशन मीन्स क्या है, हमारी एक टेबल है, क्या है, टेबल, हमने उसमें क्या करना है, डाटा को स्टोर करवाना है, ओके, हमें डाटा को रिकॉर्ड करवाना है, और वो हम कैसे करवाएंगे, सपोज कि हमने एक टेबल ली है, ओके, उसमें हमने अपना डाटा लिया है, हमने क्या क्या ले लिया, ए के अंदर हमने क्या करवाया है, प्रोडक्ट आईडी, ओके, एंड बी के अंदर हमने क्या, वन में हमने प्रोडक्ट आईडी ली है, प्रोडक्ट आईडी अपना क्या हो सकता है, P100 ले लिया सपोज, ठीक है, एंड बी के अंदर हमने क्या करवाया, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर मतलब वो जो प्रोडक्ट है वो कौन सी कंपनी का है, सपोज वो हमने डेल ले लिया, ओके, एंड थर्ड वन में हमने प्रोडक्ट की क्या करवा दी, कैटेगरी को डिसाइड करवा दिया, सपोज वो हमारे पास क्या है, लैपटॉप है, ओके, एंड फोर्थ में डी में हमने क्या करवाया, उसका सीरियल नंबर ले लिया, ओके, सीरियल नंबर हमने डिफाइन किया। तो ये हमने क्या कर दिया यहाँ पे, हमने एक टेबल के अंदर क्या ले लिए, कॉलम ले लिए, एक कॉलम ए हमने लिया है अपना प्रोडक्ट आईडी का, ए जो कॉलम है वो अपना है प्रोडक्ट के लिए, एंड बी कॉलम हमने मैन्युफैक्चरर के लिए रखा है, सी कॉलम में हमने क्या किया है, अपना प्रोडक्ट की कैटेगरी के लिए हमने यूज़ किया है, और डी हमने यूज़ किया है सीरियल नंबर के लिए। अगर हम बात करें मिनिमल कवर की, मिनिमल कवर में क्या रहेगा,
सपोज कि हमारे पास ए है, प्रोडक्ट की आईडी से हम मैन्युफैक्चरर का पता लगा सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट की आईडी है हम मैन्युफैक्चरर का पता लगाएंगे। जैसे हमारे पास P10 है प्रोडक्ट, ओके, और बी में हमने क्या किया, डेल 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 से हमने क्या किया, प्रोडक्ट आईडी से किसका, कैटेगरी का पता लगाया। एंड उसके बाद हमने क्या किया, प्रोडक्ट डेल से हमें क्या पता लगेगा कि डेल के जो हमने क्या ले रखे हैं, लैपटॉप ले रखे हैं। ओके, इससे हमें क्या हुआ, कैटेगरी का भी डिफाइन हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो अपना ए बी है, प्रोडक्ट आईडी से मैन्युफैक्चरर आईडी से हमने क्या डिसाइड, क्या हमें पता लगा, प्रोडक्ट कैटेगरी का भी हमने फाइंड कर लिया। एंड डी डी इज़ व्हाट, सीरियल नंबर से क्या हुआ, ए और सी, सीरियल नंबर से हमने प्रोडक्ट आईडी को और कैटेगरी को दोनों को फाइंड किया है। तो यहाँ पे जो हमारा जो कैंडिडेट की है, जो हमने ये लिया है, ए बी को कैंडिडेट लिया है, किसको, ए बी को। ए बी मीन्स हमने जो, 1 सेकेंड, ए बी हमने लिया है अपना प्रोडक्ट आईडी, और बी को हमने क्या लिया था, मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्ट आईडी दोनों से हम हमारा जो कंप्लीट डाटा है वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि कैंडिडेट की में क्या रहेगा, कैंडिडेट की ऐसी की होती है जो बिल्कुल ही यूनिक डाटा को शो करता है। ठीक है, ये 1 भी हो सकती है या 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। सो यहाँ पे जो अपना डी है, डी एक बिल्कुल एक एग्जैक्ट कैंडिडेट की होगी, बिकॉज डी में हमने क्या स्टोर करवाया था, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर क्या होगा, हर एक जो हमारा जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसका जो सीरियल नंबर है वो बिल्कुल यूनिक रहता है। ठीक है, सीरियल नंबर से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट आईडी को भी फाइंड कर सकते हैं, हम उसका मैन्युफैक्चरर को भी फाइंड कर सकते हैं, और उसकी प्रोडक्ट कैटेगरी को भी, तीनों चीज़ों को हम डी से एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो अपनी जो कैंडिडेट की है वो ए भी नहीं है, वो हम अपनी क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। ठीक है, और मिनिमल कवर में हमेशा फंक्शन जो है, जो हमारा फंक्शनल डेफिशिएंसीज हैं वो हमेशा एग्जिस्ट करती हैं। तो ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग एंड सेकंड वन इज़ आल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट वन इज़, अगर हम बात करें what is the true about an abstract class, what is abstract class? जब भी कोई हमें कोई भी ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है, जब हम उसका ब्लू प्रिंट रेडी करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ब्लूप्रिंट सिर्फ क्या है, एक डिज़ाइन, जो हमें एक्चुअल में एक रियल ऑब्जेक्ट चाहिए उसका जो डिज़ाइन होता है, पर ये अपने आप में कंप्लीट नहीं होता। ओके, हम इसको क्या बोल सकते हैं, इस ब्लूप्रिंट को हम क्या बोल सकते हैं, बेस क्लास। ठीक है, ये अपना जो ब्लूप्रिंट है, ये अपना जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, हम इसको बेस क्लास भी बोल सकते हैं, बिकॉज बेस क्लास में हम सिर्फ उसके बारे में बता सकते हैं। सपोज कि हमारे पास एक कार है, ओके, अब कार में क्या रहेगा, कार के लिए जो भी उसकी प्रॉपर्टी हैं, अपना फ्यूल, ओके, कार की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं, जैसे फ्यूल की प्रॉपर्टी है, एंड उसमें हम क्या कर सकते हैं, इंजन की फैसिलिटी है। ओके, ये जो चीज़ें वो हमें प्रोवाइड हो रही हैं, ये उसकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हम उसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं। बट जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड, हम इसको इनहेरिट नहीं कर सकते, बिकॉज कार के अंदर कार सिर्फ, अगर हम एक सिंपल वर्ड का यूज़ करते हैं कार, तो कार के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज अदर भी हैं, जैसे हमें पर्टिकुलर कार का नेम प्रोवाइड करेंगे। ओके, कोई भी कार हो सकती है, टाइगन हो सकती है, अपनी एसयूवी हो सकती है। ओके, जो जितनी भी ये कार हैं, ओके, ये जो, अगर हम सिंपल कार की बात करें तो ये अपना क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर हम पर्टिकुलर किसी की बात करते हैं कोई भी टाइगन है, एसयूवी है, या फिर जो भी हैं, ये अपनी डिराइव क्लास होती हैं। क्या होती हैं, डिराइव क्लास। मतलब डिराइव क्लास में क्या रहेगा, जो भी पर्टिकुलर हम कार का जो हम ड्राइव कर रहे हैं, रियल कार जो हम ड्राइव कर रहे हैं, वो अपना क्या है, डिराइव्ड क्लास।
और जो जिसका हमने डिज़ाइन रेडी किया है वो अपना क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। पर जो भी हमने डिज़ाइन बनाया है, जो ब्लूप्रिंट है, हम उसको इनहेरिट नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम क्या करते हैं, डिराइव क्लास की प्रॉपर्टीज़ को हम क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं। बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है अपने आप में ही बहुत ही वेग होती है, क्योंकि ये क्लियर नहीं होती। अंडरस्टैंड? एंड सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हियर। One second. Our next question is what is the availability of a software with the following figures: mean time between failure is equal to 40 days and mean time to repair is equal to 100 hours. अब इसमें क्या है, बेसिकली हम इसमें किन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, इसमें बात की गई है MTBF। MTBF का मतलब क्या है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। क्या है अपना मीन टाइम बिटवीन फेलियर, मीन्स कि जब भी हमारा जो भी अपना सॉफ्टवेयर है, सपोज, या फिर जो भी, हाँ, अपना सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सिस्टम है, या फिर सिस्टम हमारा फेल होने से पहले कितना दिन उसने अच्छे से वर्क किया है, वो है अपना 40 डे, ठीक है, 40 डेज। और उसके बाद मीन टाइम टू रिपेयर, मतलब उसको रिपेयर होने में जो टाइम लगा है वो कितने आवर लगे हैं, 10 आवर्स। ओके, हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, अवेलेबिलिटी, मतलब सॉफ्टवेयर कब हमें अवेलेबल होगा, हमें फाइंड करना है। इसका अपना एक फॉर्मूला होता है। ओके, ये अपना जो फॉर्मूला रहेगा ये रहेगा अवेलेबिलिटी। इसमें हमने क्या किया है, जो अपना एम टी बी एफ है। ओके, एम टी बी एफ अपना कितना था, एम टी बी एफ अपना है 40 डेज़ का। ओके, और 1 डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर। तो एम टी बी फी अपना कितना हो जाएगा, 960 आवर। कितना हो जाएगा, 960 आवर। एम टी बी एफ अपॉन एम टी बी एफ प्लस अपना एम टी टी आर, ये अपना क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। अगर हम बात करें, 1 सेकेंड, अगर हमने यहाँ पे लिया है एम टी बी एफ प्लस, अगर हमने इसको डिवाइड किया, हमने इसमें क्या लिया, अगेन एम टी बी एफ प्लस, अगर हमने क्या कर दिया, एम टी टी आर, तो इससे हमारा जो अवेलेबिलिटी है वो हमें शो होगी। तो इसका जो हमारा आंसर जो कैलकुलेशन पे आएगा वो आएगा अपना 98.97%। कितना आएगा, 98.97%। बट जो हमारा ऑफिशियल साइट पे जो हमें आंसर गिवन है वो है अपना ऑप्शन बी, 80%। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच GA एनकोडिंग स्कीम सफ़र फ्रॉम द हैमिंग क्लिफ प्रॉब्लम। अगर हम हैमिंग क्लिफ की बात करें तो हैमिंग क्लिफ बेसिकली एक ऐसी प्रॉब्लम होती है, हम इसको बाइनरी एनकोडिंग GA बोल सकते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर, बाइनरी कोडेड GA। इसमें क्या है कि जो भी हमारा न्यूमेरिकल जो वैल्यू आती है, ठीक है, उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट अगर हम करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें चेंज करना पड़ता है उसके ट्रांजिशन में। सपोज़ कि हमारा जो 6 जो नंबर है उसका बाइनरी नंबर कितना रहेगा, 110। अगर हम 7 की बात करें तो उसका बाइनरी नंबर है 111। अगर हम 8 की बात करें तो 1000। ये हमारे बाइनरी नंबर है। ओके, जब 7 को हमें 8 में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, इसके लिए जो चेंजेस रहेंगे उसमें 4 बिट में हमें चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये एक बहुत बिग चेंज हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपने सिस्टम को एक 7 से 8 में कन्वर्ट होने में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी कोड GA। ओके, क्योंकि इसमें फ्लिप कितने टाइम करना पड़ता है, 4 टाइम फ्लिप करना पड़ता है। ओके, और ये हमारे लिए क्या होता है, बैड होता है। एल्गोरिथम को बार बार चेंजेस करने पड़ते हैं। ओके, और वो आर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, बाइनरी कोडेड GA। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The transport layer protocol used for real-time multimedia file transfer, DNS and email respectively are. What is transport layer? ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली ये एक क्या है, एक डिलीवरी सर्विस है इंटरनेट पे, जो क्या मैनेज करती है, हमारा जो डाटा है वो एप्लीकेशन में डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स पे कैसे ट्रैवल हो रहा है, ठीक है। वो जो डाटा ट्रैवल होता है वो किसके थ्रू होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू। ओके, इसमें अगर हम बात करें तो हम किन चीज़ों का मेनली किसका यूज़ करते हैं, एक होता है अपना आईपी एड्रेस, ओके, और सेकंड वन होता है अपना पोर्ट नंबर। ये दो चीज़ क्या होती हैं इसमें मेन होती हैं, और हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, विदाउट अपना आईपी एड्रेस के और पोर्ट एड्रेस के क्या हम डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आप इसका कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई करेंगे कि क्या हम आईपी एड्रेस के बिना और पोर्ट नंबर के बिना क्या हम डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ओके, आप ये हमें किसमें, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, एंड व्हाट इज़ यूडीपी? यूडीपी बेसिकली जैसे हमने कोई भी लाइव फ़ोन कॉल है या फिर हमने लाइव वीडियो कॉल अगर हम कर रहे हैं तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, यूडीपी का। एंड टीसीपी अपना क्या है, जब भी हम किसी भी ईमेल को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, सेंड कर रहे हैं ईमेल को, या कोई लेटर है उसको हम किसके थ्रू करते हैं, टीसीपी के थ्रू। इसकी जो जो टीसीपी है अपना, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर, यूडीपी एंड टीसीपी एंड यूडीपी एंड टीसीपी। ओके, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। जो टीसीपी है अपना ये ज़्यादा सिक्योर रहता है और यूडीपी क्या होता है, अपना लेस सिक्योर होता है। इसमें डाटा जो है टीसीपी में स्लो जो है डाटा मूव होता है, और यूडीपी के अंदर हमारा जो डाटा की जो प्रोसेस होती है वो फास्ट होती है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following is a correct order in which of the software project manager estimate the various project parameter while using Kokomo? What is Kokomo? Kokomo is a कंस्ट्रक्टिव कोड मॉडल। क्या होता है ये कंस्ट्रक्टिव कोड मॉडल? जब भी हमें किसी भी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट एस्टिमेशन, हमें कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर है, ओके, उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आ सकती है, अगर हमें उसको एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, एक सॉफ्टवेयर को बनाना है, एक डिज़ाइन करना है सॉफ्टवेयर को, उसकी जो कॉस्ट रहेगी वो हम किसके थ्रू डिफ़ाइन करते हैं, कैसे हम उसका एस्टिमेट लगाते हैं, वो हम करते हैं कोकोमो के थ्रू। इसमें जो अपना सी ऑप्शन रहेगा करेक्ट, इसमें एक सीक्वेंस के थ्रू हम प्रोजेक्ट को पैरामीटर में डिफ़ाइन करते हैं। नंबर वन इज़ साइज़, एफर्ट, ड्यूरेशन एंड कॉस्ट। अगर हम बात करें साइज़ की, साइज़ में हम क्या यूज़ करते हैं, के लॉग में मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर हम कितनी लाइन ऑफ कोड का यूज़ करेंगे, एल ओ सी कोड ऑफ लाइन, लाइन्स ऑफ कोड क्या हो जाएगा, लाइन्स ऑफ कोड, मतलब हम कितनी लाइन्स का 10,000 या 1,000 जितनी भी हम लाइन्स का यूज़ करेंगे वो हम किस में करेंगे, के लॉग में, एस्टिमेट साइज में। अगर हम बात करें एस्टिमेट एफर्ट की, ओके, सेकंड वन पे आता है अपना एस्टिमेट एफर्ट। एफर्ट की बात करें तो उसमें हमारा जो साइज़ है वो कितना रहेगा, उसमें जो टोटल पर्सन है वो मतलब जितनी भी पर्सन्स की हमें नीड रहेगी, जितने भी स्किल्ड पर्सन हैं, ओके, उनका जो मतलब साइज़ है उसका हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितने पर्सन हैं और कितने मंथ के लिए हमें उनसे काम करवाना है, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे एस्टिमेट एफर्ट के अंदर। अगर हम बात करें टाइम ड्यूरेशन की, तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने में हमें कितना टाइम लगेगा, कितने मंथ लगेंगे, क्या हमारे एफर्ट्स रहेंगे, वो हमारे ड्यूरेशन के अंदर आएंगे। अगर हम बात करें कॉस्ट की, कॉस्ट में हमारा क्या होता है, इसमें हम बेसिकली ड्यूरेशन का कितना हमें टाइम लगा है या फिर कितने हमें डेवलपर्स की नीड रहेगी, वो हम किस में अज्यूम करते हैं, एस्टिमेट कॉस्ट में। ओके, ये हमारा क्या है, कोकोमो। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a multi-level page table is preferred in comparison to a single level page table because option D is correct here, it reduce the size of the page table। अगर हम बात करें हमारा क्या है, ये जो पेज टेबल है, ठीक है,
ये बेसिकली किसका पार्ट है, एक वर्चुअल मेमोरी का। किसका, वर्चुअल मेमोरी का। ये किसको मैप करता है, वर्चुअल एड्रेस को। ये जो पेज टेबल होता है, सॉरी, पेज टेबल क्या करता है, मैपिंग करता है वर्चुअल एड्रेस की, किससे, फिजिकल एड्रेस से। अगर हम एक एग्जांपल लें, सपोज कि हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है डोमिनोज से, ओके। अब हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, ये हमारा क्या है, वर्चुअल एड्रेस, ओके। हमने पिज़्ज़ा को ऑर्डर किया, उसके बाद जो है पेज टेबल, एक मतलब जो डिलीवरी ऐप है वो क्या है, अपनी पेज टेबल। वहाँ पे जो एक्चुअल में हमारे जो सिटी है, सिटी में कहाँ पे जो इसका जो पिज़्ज़ा का जो अपना मेन जो स्टॉप जो शॉप है वो कहाँ है, ठीक है ना। वो जो शॉप है वो कहाँ पे फिज़िकली, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो उसकी जो इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है, वो होती है वो इसमें पेज टेबल हमें क्या करता है, इस चीज़ को वहाँ पे वो स्टोर होती है, ओके। तो पेज टेबल ने क्या किया, जो हमने वर्चुअल मेमोरी से हमने जो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है उसको किससे कनेक्ट कर दिया, उसने फिज़िकल जो शॉप है उससे कनेक्ट करने का जो काम किया है, किसने किया है, पेज टेबल ने, ओके। जिसके थ्रू हम इजीली क्या कर सकते हैं, अपने जो ऑर्डर किया है हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। वो सब किसके थ्रू होता है, पेज टेबल के थ्रू, क्योंकि उसमें हम लोकेशन को ट्रैक करते हैं। और ये हमारा क्या करता है, साइज़ को, जो साइज़ होता है टेबल के अंदर जितना भी डाटा हमने स्टोर करवाया है उसमें जो साइज़ होता है उसको रिड्यूस करने का काम करता है, ओके। अगर हम मल्टी पेज टेबल की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, अगर हम सिंगल लेवल पेज की अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास मोबाइल नंबर्स हैं, ठीक है। हमने बहुत सारा जो डाटा है वो हमने एक सिंगल लेवल पेज टेबल के अंदर हमने स्टोर करवाया है। बट अगर हमने उसमें अनयूज्ड भी हैं, यूज्ड भी हैं, सारे एक ही में स्टोर करवाए हैं, तो अगर हमें हमें उसमें से कुछ डाटा को फेच करना है तो वो क्या रहेगा, हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट। अगर हम बात करें मल्टी पेज टेबल की, अगर हम बात करें तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा डाटा है उसको ब्रेक कर देते हैं, किसमें, लेवल्स में, स्मॉल स्मॉल लेवल में हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, जिससे हम इफ़िशिएंटली जो कंप्लीट डाटा है हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ओके। सपोज़ कि हमने जो भी जैसे फ़ोन नंबर है, ठीक है, उसका एक जॉइंट शीट में उस डाटा को स्टोर करने की जगह पे हमने उसमें 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया, जैसे स्टेट वाइज, सिटी वाइज और स्ट्रीट वाइज। उस यूज़र की हमें जो डिटेल्स हैं वो स्टेट वाइज, सिटी वाइज और स्ट्रीट वाइज हमें वो क्या हो जाए, इजीली हम उसको डाटा को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। ये फैसिलिटी हमें कौन प्रोवाइड करता है, मल्टी लेवल पेज टेबल। सिंगल लेवल पेज टेबल में हम सिर्फ क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करवा देते हैं वन प्लेस पे, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और इसमें जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा लॉस होती है। लेकिन जो मल्टी लेवल पेज टेबल है, हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हमारी जो मेमोरी है वो सेव होती है और जो साइज़ है पेज का वो भी रिड्यूस होता है, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, the Cohen-Sutherland algorithm divides the region into how many spaces? Here option 9 is correct. अगर हम बात करें कोहेन सदरलैंड एल्गोरिथम, ये जो बेसिकली है ये अपना क्लिपिंग एल्गोरिथम होता है। क्या होता है, क्लिपिंग एल्गोरिथम। जब भी हम कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में जब भी हमें कोई भी अपना कोई भी ग्राफ है वो इनसाइड, या फिर सपोज कि हम हमारे पास एक फ़ोटो है, उसको अगर हमें क्रॉप करना है, क्रॉप करेंगे तो उसका जितना भी एरिया जो है, जो भी सिलेक्टेड एरिया है उसके अंदर के जो एरिया है सिर्फ उसी में चेंजेस आएंगे, जो आउटसाइडर है वो क्या हो जाएगा, हमें इनविजिबल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कोहेन, हम क्या कर रहे हैं, क्लिपिंग एल्गोरिथम का यूज़ कर रहे हैं इसमें। किसका, क्लिपिंग का। जो विजिबल पार्ट है उसको विजिबल रीजन बोलते हैं, और जो सेंट्रल पार्ट रहेगा उसको, एंड 8 क्या होते हैं, आउटसाइड रीजन होते हैं, जिसमें हम टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट एंड 4 अदर हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। एक फ़ोटो को जैसे ही हम क्रॉप करते हैं, ये सब किसके अंडर आता है, कोहेन सदरलैंड एल्गोरिथम के थ्रू हम करते हैं, ओके। सो द 9 इज करेक्ट हियर. What is usually regarded as the von Neumann
bottleneck. Okay, option A is correct here. Processor memory interface. What is processor memory interface? अगर हम बात करें वॉन न्यूमैन जो आर्किटेक्चर है, जो बेसिकली इसका जो यूज़ करते हैं वो कौन करते हैं? बहुत अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा अगर हमारा स्टोर है, ठीक है, वो किसके थ्रू हम एक्सट्रैक्ट करते हैं? वॉन हम के थ्रू। उसमें क्या होगा, अपना जो प्रोसेसर है, ठीक है, जो सीपीयू फेच करता है अपने डाटा को। कैसे? सेम मेमोरी से एक बस के थ्रू भी वो यूज़ कर सकता है इंस्ट्रक्शन को या फिर डाटा को, या फिर सेम मेमोरी के थ्रू जब हम डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो अपना किस में आता है? वॉन नोहम आर्किटेक्चर के थ्रू। बट जो बोटलनेक है उसमें डाटा को फैच करना, मतलब बस से और मेमोरी से दोनों को एक टाइम पे फैच करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो हम इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, प्रोसेसर मेमोरी इंटरफेस। क्या जाएगा अपना? प्रोसेसर मेमोरी इंटरफेस। अगर हम थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें? अपना सपोज कि जो अपना सीपीयू है, ओके, इसको हमें कोई भी डाटा फैच करना है मेमोरी से, तो सीपीयू को क्या है? वेट करना पड़ता है उस डाटा के एक्सट्रैक्ट होने का। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वो नो हम में क्या होता है? टाइम वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि क्या क्या होता है? प्रोसेसर बहुत फास्ट होता है, लेकिन जो अपना कनेक्शन होता है ना प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में, वो क्या होता है? स्लो। उस स्लो प्रोसेस की वजह से क्या होता है? हमें डिले हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? वॉन नॉमन। ओके। एंड व्हाट इज़, अगर हम बात करें प्रोसेसर को या फिर मेमोरी इंटरफेस को, ये किसके बीच में कनेक्शन होता है? प्रोसेसर का और मेमोरी इंटरफेस का। ये अपना होता है रैम, जो हमारा रैम है एंड सीपीयू, इन दोनों के बीच में जो है कनेक्शन जो एस्टेब्लिश होता है वो किसके थ्रू होता है? प्रोसेसर और मेमोरी के थ्रू। ओके। एंड अपना ये हमने देखा कि वॉन ओमन जो बोटल नेक है, बोटल नेक मीन्स क्या रहेगा? जो कनेक्शन होता है अपना सीपीयू का और मेमोरी का, इसमें जो डाटा जो ट्रैफिक है वो क्या हो जाता है? जैम हो जाता है, बिकॉज सीपीयू को क्या करना पड़ता है? वेट करना पड़ता है डाटा को मेमोरी से एक्सट्रैक्ट करने में। ये अपना था वॉन नैम। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट है। अगर हम आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन agent is composed of, is option D is correct here, algorithm program. What is algorithm program? अगर हम एजेंट की बात करें तो what is agent here? एजेंट बेसिकली यहाँ पे क्या है? सॉफ्टवेयर। मतलब जब भी ये क्या होता है? सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वर्क करता है। कैसे? जैसे हमने अपने सीपी के अंदर अपना एंटीवायरस प्रोग्राम अगर हमने डाला है, तो एंटी वायरस जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया है, ये क्या करता है? स्कैन करता है और ऑटोमेटिकली वायरस को रिमूव कर देता है। ये अपना क्या हो गया? एजेंट हो गया। अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें क्या रहता है? जैसे जो अपना हार्डवेयर है, हार्डवेयर या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें क्या हो जाता है? कोई भी सॉफ्टवेयर अगर रन कर रहा है तो हम क्या करवा रहे हैं? ये क्या है? अपना आर्किटेक्चर है। जो हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है, अगर उसमें हमने क्या करवाया है? सॉफ्टवेयर को रन करवाया है। ओके। एंड सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट है। किसको? जो एजेंट है सॉफ्टवेयर, किसको कंपोज करता है? आर्किटेक्चर को एंड प्रोग्राम को, दोनों को कंपोज करता है। ओके। What is the identity element in the group G2468 under the multiplication module 10? अगर हम मॉड्यूल 10 की बात करें तो इसमें बेसिकली क्या है? हमारे जो लास्ट डिजिट है वो हमें क्या करना होता है? लेना होता है लास्ट डिजिट। सपोज कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हेयर। सी इज़ 6। व्हाट इज़? सी इज़ 6। अगर हम 6 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी हमें यहाँ पे जो भी हमें नंबर गिवन है, जो भी हमें डाटा गिवन है ना क्वेश्चन के अंदर, हम क्या करेंगे उसको? जैसे हमारा सपोज 6 है, 6 मल्टीप्लाई 2, इसका आंसर कितना आ गया अपना? 12। एंड 6 मल्टीप्लाई बाई 4
ये कितना आया हम अपना 24। एंड अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 × 6 इज़ 36 एंड 6 × 8 इज़ 48। अब हम इसका जो मॉड्यूल 10 का मीन्स है इसका जो लास्ट डिजिट है हमें उसको देखना है। तो अब जो यहाँ पे लास्ट है 2 4 6 एंड 8, ये क्या है, बिल्कुल मैच कर रहा है अपना जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है 2 4 6 8। तो हमारा जो ऑप्शन सी रहेगा वो करेक्ट रहेगा। अगर ऑप्शन को लें, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में हमारा क्या रहेगा 4 रहेगा। तो वो मैच नहीं कर रहा हमारे फर्स्ट डिजिट से जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है। बट अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं इन सभी नंबर को तो हमें सेम सीरीज़ हमें यहाँ पे मिलती है, वो है अपना 2 4 6 8 जो सेम ये इसमें मैच हो रही है। ओके, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हियर। अगर हम बात करें आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिशनम लाइन एल्गोरिथम वेयर स्लोप इज लेस देन 1 एंड द इनिशियल वैल्यू ऑफ द डिसीजन पैरामीटर पी के इज दिस। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट हियर 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स। अगर हम बात करें ब्रिशनम जो लाइन एल्गोरिथम है, हम इसका किस लिए यूज़ करते हैं, जब भी हमें कंप्यूटर में ग्राफिक्स में एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रेशन हम जो ब्रेशनम जो एल्गोरिथम है हम इसका यूज़ करते हैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए। वो किसके थ्रू होता है, इंटीजर कैलकुलेशन के थ्रू, जिससे क्या होता है जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही फास्ट होती है। ठीक है, और बिल्कुल ही एक्यूरेट हम लाइन को ड्रॉ कर पाते हैं, हमारी जो मेमोरी एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज़ होती है इस एल्गोरिथम का यूज़ करने से। अगर हम बात करें जो ओल्ड टाइम में वीडियो गेम्स थे उसमें भी हम क्या यूज़ करते थे, इस एल्गोरिथम का यूज़ करते थे। वो क्या थे, अगर हम बात करें मैक्रोडोम और ये मैक्रो एंड डोम दो अलग अलग क्या है हमारे सॉफ्टवेयर है। उस टाइम पे हम इसका जो ओल्ड वीडियो गेम थे उसमें यूज़ करते थे, किसके लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए। एंड CNC मशीन प्लॉटर, इसमें भी हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रेशनम एल्गोरिथम का हम यूज़ करते हैं। और इसमें क्या है, स्ट्रेट लाइन सेम थिंग इंटीजर स्टेप से हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करवाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। अगर हम इस एल्गोरिथम का यूज़ नहीं करते हैं तो हमारा जो डाटा रहेगा वो क्या हो जाएगा, जैग्ड लाइन में। ओके, जैग्ड लाइन में या फिर डेसिमल में, वो एक प्रॉपर जो है उसको स्ट्रेट लाइन में शो होता है। सिर्फ ब्रेशनम एल्गोरिथम का यूज़ करके अगर हम इसका यूज़ नहीं करते तो वो क्या शो डिस्प्ले करता है जैग्ड लाइन को। ओके, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर। अगर हम बात करें पीके, जो अपना पीके पैरामीटर पीके है, तो ये क्या है, एक डिसीजन पैरामीटर है जिसमें जितनी भी वैल्यू को हम लेते हैं, ठीक है, अगर वो 0 से कम है तो वो मतलब शिफ्ट होने का यहाँ पे मेनली क्या रहता है, वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। अगर वो 0 से ज़्यादा है तो वो अप राइट की साइड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, डेल्टा एक्स, जो हमने डेल्टा एक्स लिया है यहाँ पे, ये क्या है, मतलब इसमें जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल जितना भी हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस रहेगा स्टार्टिंग से एंड तक, ये हमारे किसके अंदर आता है, डेल्टा एक्स में। अगर हम डेल्टा वाई की बात करें तो डेल्टा वाई में जितना भी अपना वर्टिकल रहेगा, ओके, जो भी अपना वर्टिकल स्टार्टिंग टू एंड, जब हम डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, जब हम स्ट्रेट लाइन को यूज़ करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, डेल्टा वाई का। अगर हम स्लोप की बात करें तो उस टाइम पे क्या रहेगा, कितनी स्टेप्स में, कितनी लाइंस में हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इससे हम क्या मेज़र करते हैं, स्लोप को मेज़र करते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज how many cycles are required for 100 MHz processor to execute a program which requires 5 seconds of CPU time? Here option B is correct, 50 multiply 10. Yeah. What is CPU cycle? ओके, CPU साइकिल की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली
कोई भी प्रोसेसिंग है या फिर सीपीयू के अंदर जो जो भी इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट हो रही है बेसिक पर्टिकुलर टाइम में, तो वो क्या होता है, एक सीपीयू साइकिल। और सीपीयू जो इसकी जो क्लॉक स्पीड, हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, क्लॉक का, ठीक है। इसकी जो स्पीड रहती है वो कितनी रहती है, मतलब कितने साइकिल में जो हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो एग्जीक्यूट हो रही है, मतलब कितने साइकिल्स में पर सेकंड में, कितनी साइकिल्स में हमारी जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रही है, उसको बोलते हैं क्लॉक स्पीड। अगर हम बात करें 1 ms/z की, तो ये अपना किसके इक्वल होता है, 1 मिलियन। ओके, 1 मिलियन किसके बराबर इक्वल होता है, 10 लाख। ओके, इतनी साइकिल्स, इतनी इंस्ट्रक्शंस 1 ms/z के अंदर हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। अगर हम बात करें 100 की, अगर 1 अपना कितने के, 1 मिलियन के इक्वल है, तो 100 कितना हो जाएगा, 100 कितना, 100 मिलियन साइकिल्स के इक्वल रहेगा। 100 मिलियन साइकिल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपना 50 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, our next question is option B is correct here. The prefix form of a minus b divisible c multiplied d, and this is prefix prefix notation। इसमें बेसिकली क्या है, जो हमारा जो सिस्टम है उसमें जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं उसमें ऑपरेटर्स को वो क्या करता है, ऑपरेंड से पहले डिफाइन करता है। ओके, प्रीफिक्स में जो हमारे ऑपरेटर्स रहेंगे वो ऑपरेंड से पहले हम डिफाइन करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रीफिक्स में, बिकॉज़ इससे जो हमारा पीसी है, जो हमारा सिस्टम है, उसको अंडरस्टैंड इजीली वो अंडरस्टैंड कर पाएगा कि ऑपरेटर्स जो हैं वो हमारे पहले आएंगे, ऑपरेंड्स बाद में। इनमें कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसीलिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स नोटेशन का। प्रीफिक्स नोटेशन की अगर हम बात करें, अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ई, देन डी, एंड देन दिस, एंड अगर हम बात करें देन सी, एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, एंड यहाँ अपना है माइनस, एंड हम क्या करेंगे, इसमें ए को हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा अपना माइनस ए बी, ए एंड बी। ओके, ये अपना हो जाएगा ये, और ये अपना किस में मैच हो रहा है, सी में, माइनस ए अपॉन सी एंड दिस। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, अपना प्रीफिक्स नोटेशन। हमने क्या करा, जो भी मतलब हमने इसमें किसका यूज़ किया है, स्टैक बेस्ड इवैल्यूएशन हमने किया है। किसमें, स्टैक बेस्ड में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें हमने क्या किया है, जो भी हमारे ऑपरेंड है वो साइड में है, और जो उससे पहले जो है वो हमने जो ऑपरेटर्स हैं वो अप्लाई किए हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल। डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल बेसिकली है क्या, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल में जब भी हमें क्या करना है, ये एक इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है। क्या है अपना, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। इसमें हम किस एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम का हम यूज़ करते हैं। एक शॉर्टेस्ट पाथ को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसमें बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं, और इसमें क्या रहता है, अपना इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का हम यूज़ करते हैं। ओके, इसमें अगर हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, कोई भी डाटा को हमें ट्रांसफ़र करवाना है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, राउटर। और राउटर में बेसिकली ये क्या करता है, एक राउटिंग टेबल में एक लिस्टिंग बनाता है, एक डेस्टिनेशन की, जहाँ पे हमें क्या करना है, अपने डाटा को सेंड करना है। और ये इसके अंदर क्या रहेगा,
इसके अंदर पर्टिकुलर हम क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट बना रहे हैं किसकी, राउटर टेबल की। और जो ये टेबल है इसमें हमारा जो एंटायर जो नेटवर्क है उसके अंदर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे क्या रहेगा, हम बहुत ही इजीली अपना जो शॉर्टेस्ट पाथ है हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो अपना करेक्ट रहेगा। RIP एंड IRGRP ये दोनों ही किसके पार्ट होते हैं, अपने डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल के। ओके, जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत ही फास्ट शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड कर सकते हैं अपने नेबर जो अपना एरिया है उसमें। एंड OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, इसमें हम क्या इसमें इसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, एक लिंक जनरेट करते हैं। ये लिंक के थ्रू होता है। जो हमने पहले किया है ये अपना राउटर में हम राउटर का हम यूज़ कर रहे हैं, इंटीरियर गेटवे का हम यूज़ करते हैं अपने डेस्टिनेशन को शॉर्टेस्ट पाथ में अपने पैकेट्स को ट्रैवल करने के लिए। बट इसमें राउटर में जो डाटा जो होता है अपना राउटर में हमारा डाटा जो होता है पैकेट के फॉर्म में सेंड होता है। बट अगर हम बात करें OSPF में, इसमें लिंक के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने डाटा को राउटिंग में सेंड कर रहे हैं। ओके, so option second and third are correct here. Local maxima in algorithm. Okay, one second. Local maxima is where it is. 1 second, sorry for that. Local maxima algorithm. Okay, which of the following algorithm does not face the local maxima problem? Here option C is correct. Best first search. Local maxima algorithm is what? इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, जो भी अपनी प्रॉब्लम रहती हैं उसको हम क्या करते हैं, लोकल मैक्सिमम प्रॉब्लम के अंदर अपना क्या रहेगा, 1 सेकेंड। अगर हम बात करें लोकल मैक्सिमा प्रॉब्लम, ये एक सॉल्यूशन है, बेटर सॉल्यूशन है ऑल द नेबर्स, बट नॉट द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ एंटायर सर्च स्पेस। अगर हम इसका एक एग्जांपल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करें कि लोकल मैक्सिमा बेसिकली जब हम किसी भी ऐसी कंफर्टेबल जॉब में होते हैं जिसकी सैलरी हाई है, बट हमारी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हैं वो बहुत ही लो होती हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लोकल मैक्सिमा को। मतलब ये बेटर सॉल्यूशन तो देता है लेकिन जो बेस्ट है हम उसको बेस्ट सर्च नहीं कर पाते अपने सॉल्यूशन को। तो ये हमारे जो जॉब का जो हमारा एग्जांपल है ये हमारा क्या है, लोकल मैक्सिमा प्रॉब्लम को शो करता है। एंड अगर हम बात करें सिंपल हाई सिंपल एच सी मीन्स सिंपल हील क्लाइंबिंग, इसमें क्या रहेगा, ये बेसिकली अगर एक एग्जांपल से हम इसको अंडरस्टैंड करें, सपोज कि हम कुकिंग कर रहे हैं। ओके, अगर हम कोई भी डिश बना रहे हैं, अगर हम उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते हैं, उससे हमारा क्या होगा, जो टेस्ट है वो बेटर हो जाता है। उस टेस्ट को कंटिन्यू करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें इंग्रेडिएंट्स को ऐड ऑन करते जाते हैं। तो ये हमारा सिंपल क्या हो जाएगा, हील क्लाइंबिंग। इसमें भी बेसिकली हम क्या करते हैं, मूव करते जाते हैं स्लो। एंड स्टीपेस्ट एसेंट HC, इसमें क्या रहेगा, सपोज हमारे पास क्या है, रेस्टोरेंट है,
रेस्टोरेंट की चॉइस है। ओके, उसके अगर हम रिवेन्यू को रीड करते हैं, उसमें जो मेन्यू अगर हमें गिवन है, मतलब वहाँ पे जाने से पहले अगर हम इन चीज़ों को क्या करते हैं, अगर हमने उसका रिव्यू किया है, उसका मेन्यू को पढ़ा है, उसके बाद हम कोई भी पिक करते हैं, उसमें से कोई भी हम ऑर्डर कर रहे हैं मेन्यू को, तो ये हमारा क्या है, स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग। ओके, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले रिव्यू किया, उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद इन इन सब में से हमने चूज़ किया है कि हमें कौन से रेस्टोरेंट पे जाना चाहिए। मतलब जो भी नियर अराउंड हमारे लोकेशन के अराउंड रेस्टोरेंट हैं, उनको रिव्यू करने के बाद ही हम उसको चूज़ करते हैं, एक सॉल्यूशन पे पहुंच रहे हैं। तो वो हमारा किसका जो एग्जांपल है वो है लोकल मैक्सिमा प्रॉब्लम का। सिंपल हिल क्लाइंबिंग में भी हमने क्या किया, इसमें भी हमने क्या किया, एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किया है, उसको अपने अपना इंस्ट्रक्शन को ऐड किया है। ओके, ये अपना किसका है, लोकल मैक्सिमा प्रॉब्लम। थैंक यू एवरीवन।